گھر پر آج پانی بالکل ختم ہو چکا تھا اور اماں مجھے کب سے کہہ رہی تھی کہ جا کر کنویں سے پانی نکال لاؤ۔ میرا دل نہیں جا رہا تھا، ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی اور اوپر سے گھڑے کو اٹھا کر اتنی دور لے کر آنا مجھے بہت بھاری لگتا تھا۔ لیکن اماں کو کون سمجھاتا؟ اماں کا یہ کہنا تھا کہ ساری لڑکیاں تو کنویں سے پانی لے کر آتی ہیں، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کون سا کسی نواب کی اولاد ہو؟ یہ کام ساری لڑکیاں کرتی ہیں، میں نے بھی کیے ہیں، اور اب اگر تیری باری ہے تو کیوں اتنے نخرے کرتی ہے؟ لیکن اماں کو کیا کہتی؟ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا ایک گھڑا کمر پر رکھ کر اور ایک سر پر رکھ کر اتنی دور سے اپنے گھر واپس آنا مجھے بہت مشکل لگتا تھا، اور پھر پانی بھی اتنی جلدی ختم ہو جاتا۔ لیکن اماں کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی، آخر کنویں کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا آپشن تھا؟ اسی لیے اماں کے بار بار کہنے پر میں اٹھ گئی اور دوپٹہ لپیٹ کر گھڑے اٹھا کر گھر سے باہر آ گئی۔ 2 گھر چھوڑ کر میں نے اپنی سہیلی صفیہ کو بھی آواز دے لی، وہ بھی جیسے میرے انتظار میں ہی بیٹھے تھے۔ جھٹ سے پانی کے خالی گھڑے اٹھائے باہر آ گئی۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے کنویں کی طرف چل پڑے۔ یوں تو مجھے کنویں پر جانا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرنا اور ان کے ساتھ موج مستی کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں اور صفیہ کنویں کی طرف چل پڑے تھے اور راستے میں دوسری سہیلیاں بھی ملتی گئیں، اور یوں ہمارا ایک کارواں سا بن گیا۔ 8-10 لڑکیوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ جب کنویں پر پہنچا تو سب باری باری ڈھول پھینک کر پانی بھرنے لگی۔ میں ادھر ادھر پھر کر اپنا وقت گزار رہی تھی۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ اسی بات کی ٹینشن تھی کہ اب پھر سے اتنے وزنی گھڑے کو اٹھا کر واپس گھر جانا پڑے گا۔ مجھے اس بات سے بہت کوفت ہوتی تھی اور اسی لیے میں پانی بھرنے آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں روز ہی مجھے بھیج دیتی۔ میری عادت تھی میں جب بھی آتی تو یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی نہ کوئی سورت تلاوت کرنے لگتی تھی۔ آج بھی میں سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اپنی باری آنے پر میں نے ڈھول کو کنویں کے اندر پھینکا اور رسی کھینچ کے ڈھول باہر نکالنے لگی، لیکن آج مجھے بہت زیادہ زور لگانا پڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی بہت وزنی ہو گیا ہو۔ میں اپنا پورا زور لگا رہی تھی، لیکن مجھ سے ڈھول کھینچا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ مدد کے لیے صفیہ کو بلا لیا اور کہا، صفیہ ذرا میری مدد کروانا، مجھ سے یہ آج ڈھول کھینچا ہی نہیں جا رہا، بہت وزنی لگ رہا ہے۔ صفیہ آگے آئی اور کہنے لگی، تم روز اسی طرح نخرے کرتی ہو، نہ جانے تمہیں کیا ہو جاتا ہے، کیوں تمہیں پانی بھرنا اتنا مشکل کام لگتا ہے؟ صفیہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ آئی اور میرے ہاتھ سے رسی پکڑ لی۔ اب وہ بھی میرے ساتھ ہی زور لگا رہی تھی، لیکن آج تو واقعی ڈھول بہت وزنی تھا۔ صفیہ بھی کھینچ کر ہانپنے لگی تھی۔ ہم دونوں کو سانس چڑھ گیا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، مقدس آج اس ڈھول کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم سب نے پانی نکالا ہے لیکن اتنا وزنی تو پہلے نہیں تھا، تمہاری دفعہ ہو گیا ہے۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ تم ہمیشہ کی طرح نخرہ کر رہی ہو، لیکن یہ تو سچ مچ میں بہت وزنی ہے۔ صفیہ نے یہ کہتے ساتھ ہی میرے ساتھ اور زور لگانا شروع کر دیا، لیکن وہ ڈھول آج واقعی بہت وزنی تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں نہ جانے کیا بھر گیا ہے۔ حالانکہ وہ 10 لیٹر کا ڈھول ہی تھا، لیکن پھر بھی اتنا زور لگا کر کھینچنا پڑ رہا تھا کہ اسے کھینچ کر ہم دونوں ہانپ گئی تھی اور بمشکل ہی ڈھول کنارے تک پہنچا تھا۔ ڈھول کو کنویں کے کنارے پر رکھ کر میں اور صفیہ سانس لینے رکے تو وہ مجھے کہنے لگی، مقدس یہ صرف تمہاری دفعہ ایسا ہوا ہے، نہ جانے کیوں جو کام تمہیں برا لگتا ہے وہ اسی طرح لٹک جاتا ہے۔ صفیہ نے یہ کہتے ہوئے میری مدد کی اور بالٹی اٹھا کر گھڑے میں پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ ڈھول اب بھی بہت زیادہ وزنی محسوس ہو رہا تھا اور مجھے تو یہ سوچ کر ہی پسینے آ رہے تھے کہ اب میں اس گھڑے کو اٹھا کر گھر تک کیسے لے جاؤں گی۔ باقی ساری لڑکیاں ہمارے انتظار میں کھڑی تھی کیونکہ اب شام ہو رہی تھی اور سب کے درمیان یہ بات طے تھی کہ سب اکٹھی ہی گھر واپس جائیں گے۔ سب نے جب یہ دیکھا کہ مجھے ڈول کھینچنے میں اور اب گھڑا اٹھا کر سر پر رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ سب میری مدد کے لیے آگے بڑھی، لیکن جیسے ہی میں نے گھڑے کو سر پر رکھا تو نہ جانے کیا ہوا، اس کا وزن مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور گھڑا میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ میں حیرانی کے مارے گھڑے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ پانی سارا ارد گرد پھیل گیا
اور प्यासी ज़मीन ने उसे फ़ौरन अपने अंदर जज़ब कर लिया था, लेकिन घड़े के टुकड़े उस गीले ज़मीन पर उसी तरह पड़े थे। और मैं शौक़ के आलम में यही सोच रही थी कि आखिर अब घर पानी कैसे लेकर जाऊंगी। मेरा नाम मुक़द्दस है और मेरी उम्र 21 साल है। मैंने स्कूल की तालीम तो बस 5वीं तक ही हासिल की थी। उसके बाद कुरान पाक हिफ्ज़ करने मैंने मदरसे जाना शुरू कर दिया और अपनी ज़हानत के बलबूते पर मैंने बहुत जल्द कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। अम्मा को बहुत शौक़ था कि उनकी औलादों में से कोई एक हाफिज़ कुरान बने, और अम्मा का ये शौक़ जब मैंने जान लिया तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दी। और जिस दिन मैं हाफिज़ कुरान बनी उस दिन अम्मा की खुशी बहुत दीदनी थी। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। मेरा नंबर 3 था। मुझसे बड़ी दोनों बहनों के साथ अम्मा को लगाव तो बहुत था, लेकिन वो दोनों बहुत निकम्मी थी। पढ़ाई में भी बहुत पीछे थी और कामकाज के मामले में भी थोड़ी निकम्मियाँ थे। यही वजह थी कि अम्मा उन्हें हर वक्त डांटती टपटती रहती और अक्सर उन्हें मेरी मिसाल देकर समझाती। मैं कामकाज के मामले में भी काफ़ी फुर्तीली थी और पढ़ाई के मामले में भी अच्छी थी। यूँ तो हमारे गांव में सिर्फ 8वीं तक ही स्कूल था, इसीलिए मैंने हिफ्ज़ करने के बाद 8वीं के इम्तिहान दे दिए थे। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके लिए मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। अब रोज़ कौन मुझे इतनी दूर लेकर जाता और छोड़ कर आता। अब्बा तो चौधरियों का मुलाजिम था, इसी वजह से अब्बा घर से जो भी सुबह सवेरे जाता, अक्सर इशा के बाद ही अब्बा की शक्ल देखने को मिलते। सारे दिन की अनथक मेहनत के बाद अब्बा रात को जब घर वापस आता तो उसे इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वो अपने बच्चों का हाल अहवाल ही मालूम कर लेता। यही वजह थी कि घर के सारे मामलात अम्मा ही देखती। अम्मा को ही मालूम था कि किस बच्चे के साथ कैसा बर्ताव रखना है और किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अम्मा ने जब मेरे शौक़ को जाना तो अपने तौर पर उन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि मैं हफ्ते में 3 दिन ही स्कूल चली जाया करूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। अम्मा ख़ुद भी मुझे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन जब कोई इंतज़ाम नहीं हो सका तो वो भी अपना दिल मार कर बैठ गई। लेकिन उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुकी हूँ। जिस दिन मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, अम्मा ने सारे गांव में मीठे चावल बांटे और हर एक ने घर पर आकर अम्मा को मुबारकबाद दी और मुझे इनाम के तौर पर कुछ रकम दी थी। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने अपने ख्वाब को पूरा कर लिया था। 8वीं के इम्तिहान देने के बाद अब मैं घर पर ही होती थी। अम्मा ने मेरी दोनों बहनों का रिश्ता ढूंढकर उन दोनों की शादियां एक ही घर में करती थी। एक ही घर में 2 भाइयों के रिश्ते अच्छे मिल गए थे। वो दोनों ब्याह कर दूसरे गांव चली गई। अब वो कभी कभार ही आती थी। अम्मा की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए अम्मा का रुख अब मेरी तरफ हो गया था। अम्मा मुझे आजकल अपनी नज़रों में रखे रखती, हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखती। लेकिन यूँ तो मैं सारे काम बड़ी खुशदिली से कर लेती थी, लेकिन मुझसे कुएं से भरकर पानी नहीं लाया जाता। ना जाने क्या बात थी, मुझे इस काम से बहुत चिढ़ थी और अम्मा मुझे रोज़ ही कुएं पर पानी भरने के लिए भेज दिया करती। बाहर जाना तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता था, लेकिन कुएं से वज़न उठाकर घर लाना मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज भी मैं गर्मी की मारी अपने कमरे में घुसी हुई थी और बार बार दुपट्टा गीला करके अपने ऊपर ओढ़ लेती। दुपट्टे में से जब पंखे की हवा गुजरती तो बहुत ठंडी महसूस होती, लेकिन अम्मा को मेरा इतना सा सुकून भी गवारा नहीं था। इसीलिए जैसे ही असर हुई, अम्मा मुझे मुसलसल आवाज़ें देने लगती हैं। मैंने सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ी और फिर अम्मा से कहने लगी, अम्मा आज तुम चली जाओ ना, क्यों मुझे इस तरह रोज़ इतनी दूर भेज देती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे पानी भरकर नहीं लाया जाता। या फिर ऐसा करो, आज छोटी को भेज दो। मैंने अम्मा को ये कहते हुए अपनी छोटी बहन की तरफ इशारा करने लगी, जबकि अम्मा कहने लगी, शर्म नहीं आती? इतनी बूढ़ी माँ को कुएं पर पानी भरने भेजेगी? और छोटी बहन का भी ख्याल नहीं है, वो कैसे उठा कर लाएगी? तू तो जवान जहान है, समझदार है, अपनी सहेलियों के साथ बातें करते हुए चली जा और इसी तरह बातें करते हुए घर आ जाना। कौन सा पहाड़ तोड़ना है, पानी ही तो भर कर लाना है। अम्मा ने गुस्से से कहते हुए मुझे खड़ा लाकर पकड़ा दिया और अब मेरे पास इनकार करने का कोई चारा नहीं था। इसलिए मैंने अपनी चादर ओढ़ी और खड़े उठाकर बाहर निकल आई। उस वक्त मेरी रफ्तार तेज़ थी
और मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई अपनी सहेली के साथ कुएं पर चल पड़ी। बारी बारी सबने अपने घड़ों में पानी भरा, लेकिन जब मेरे पानी भरने की बारी आई तो तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ढोल में न जाने क्या है। ढोल इतना वजनी हो चुका था कि मुझे अकेली से उसे उठाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मेरी मदद के लिए मैंने सफ़िया को बुला लिया। सफ़िया पहले तो उसे मेरा नखरा समझी थी, लेकिन जब उसने मेरी मदद करवाई तो उसे भी मालूम पड़ गया कि वाकई ढोल बहुत वजनी था और उसे ऊपर खींचना उतना ही महाल हो रहा था। हम दोनों ने अपनी पूरी कुव्वत से ढोल को ऊपर खींच लिया, लेकिन उस सारी मुशक्क़त के दौरान हम दोनों हाँफने लगे थे। बड़ी मुश्किल से ढोल को घड़े में उठेला। घड़ा भी पूरा नहीं भरा था, लेकिन मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा ढोल कुएं में फेंकती और दोबारा इतनी मेहनत मुशक्क़त करके उसे ऊपर खींचती। इसीलिए मैंने यही सोचा कि आज के लिए इतना पानी लेकर जाती हूँ, कल दोबारा आना तो है। लेकिन जैसे ही घड़ा उठाने लगी तो घड़ा उठाना भी दोपहर हो गया था। घड़ा भी मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैंने मदद तलब नज़रों से सफ़िया की तरफ देखा तो वो भी जैसे बेबसी से कंधे अचका कर रह गई। ताहम दो लड़कियों के साथ मिलकर बमुश्किल उस घड़े को मेरे सर पर रखा, लेकिन वो घड़ा इतना वज़नी था कि मेरा सर उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाया और घड़ा नीचे गिरकर टूट गया। मैं हैरत से हक्का बक्का उस घड़े को देखते रह गई। यकीन नहीं आ रहा था कि इतना वज़नी होगा कि नीचे गिरकर ही टूट जाएगा। मैं उस वक्त रो देने वाली थी। मुझे मालूम था कि अम्मा बहुत गुस्सा करेगी। एक तो मैं पानी लेकर नहीं जा रही और दूसरा घड़ा भी तोड़ दिया। पहले ही अम्मा बड़ी मुश्किल से खर्चा पूरा करती थी और अब ये घड़े का एक इजाफी खर्चा महसूस हो रहा था। मैंने बड़े बुरे दिल के साथ घर वापसी की राह पर चल पड़ी। सफ़िया मेरी परेशानी महसूस कर रहे थे, ताहम वो मेरी दिल जो ही करने लगी और कहने लगी, मैं खाला से खुद ही कह दूंगी कि तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो घड़ा ही बेवफा निकला। सफ़िया ने ये कहते हुए शरारतन एक आंख दबाई, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी। वो बेचारी मेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे मालूम था अम्मा बहुत बातें सुनाएगी। और वही हुआ। जब मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मा ने जब मुझे खाली हाथ आते देखा तो पूछने लगी। अम्मा को मैंने सारी बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हुई और बुरी तरह मुझे डांटने झपटने लगी। कहने लगी, तुम तो पहले ही पानी लेकर आने पर राज़ी नहीं थी। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने ज़बरदस्ती तुझे वहाँ पर भेज दिया और अपना नुकसान करवा लिया। अम्मा काफ़ी देर तक बोलती रही। अब चूँकि घर पर पानी नहीं था और इस वक्त वैसे भी मगरिब होने वाली थी, इसलिए अम्मा ने दूसरा घड़ा उठाया और बाहर चली गई। अम्मा कुएं की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि पानी के बगैर तो गुजारा नहीं होना था और घर में पीने के लिए एक बूंद भी नहीं बची थी। मैं बड़े बुरे दिल के साथ अंदर कमरे में आ गई। मुझे रह रहकर अफसोस हो रहा था। अम्मा शायद यही समझ रही थी कि मैंने जानबूझकर उस घड़े को तोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सचमुच में बहुत भारी था। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई मन वज़न उठा रही हूँ। उस घड़े को उठाने के बाद मुझे अब तक अपने कंधों पर एक बोझ महसूस हो रहा था और सर अलग भारी हो रहा था। शायद इतना वज़न उठा लेने के बाद सर भारी हो गया था। मैं अपने दुखते सर को एक हाथ से दबाती हुई दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गई। दरअसल मैं अम्मा का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे अम्मा से माफ़ी मांगना थी, लेकिन मेरा सर इतना दुख रहा था कि दबाने से भी मुझे थोड़ा सा सुकून मिला था और न जाने कब उसी तरह बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। लेकिन कुछ देर बाद ही न जाने किस एहसास के तहत मेरी आंख खुल गई। मैं एकदम घबरा कर इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मौजूद तो यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरा जहन कहीं और है। मैंने कुछ महसूस किया था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस वक्त मुझे यहाँ पर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो टिकटिकी बांध कर मुझे देख रहा हो, लेकिन कमरे में मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था। उस टिकटिकी के एहसास से ही मेरी आंख खुली थी और मैं न समझी से कमरे के चारों तरफ नज़र घुमा कर देख रही थी। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास शिद्दत से हो रहा था और एक अजीब सी खुशबू कमरे में महसूस हो रही थी। पहले तो मैं समझी कि शायद मैंने जो सुबह पाउडर लगाया था उसकी खुशबू आ रही है, लेकिन सुबह का पाउडर अब तक अपनी खुशबू कैसे बरकरार रखता? और फिर ये खुशबू मेरे पाउडर की खुशबू नहीं थी, ये कुछ अनोखी सी खुशबू थी।
कुछ अलग सी महसूस हो रही थी और मेरे हवासों पर तारी हो रही थी। मैं एकदम घबरा कर बाहर आ गई और बाहर आकर देखा तो अम्मा आ चुकी थी और उस वक्त बावर्ची खाने में मौजूद थी। अम्मा के चेहरे पर थकावट और झंझलाहट सी थी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अम्मा से माफ़ी मांगने लगी। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मैं घर से तो बड़े बुरे मूड से निकली थी, लेकिन रास्ते में मेरा मूड बड़ा अच्छा हो गया था। लेकिन वहाँ पर जब मैं वो ढोल खींच रही थी तो मुझसे ढोल खींचा ही नहीं जा रहा था। वो बहुत वज़नी था। मैंने सफ़िया की मदद से बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक खींचा था। तुम बेशक सफ़िया से पूछ लो, उसने मेरी मदद की थी। और फिर 2 लड़कियों ने मिलकर उस खड़े को मेरे सर पर रखा था। वो खड़ा भी बहुत वज़नी हो गया था, जैसे ना जाने उस पानी में क्या शामिल था। और फिर इतना वज़न में बर्दाश्त नहीं कर सकी और खड़ा नीचे गिरकर टूट गया। मेरा सर भी उस वक्त से बहुत दुख रहा है और कंधे भी बहुत भारी हो रहे हैं। मैंने अपनी सफाई देते हुए अम्मा से कहा तो अम्मा कहने लगी, मुझे मालूम है, सफ़िया ने मुझे सब बता दिया था। रास्ते में मुझे मिली थी, उसी की ज़ुबानी सब कुछ मालूम हुआ है। तू फिक्र न कर, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। अम्मा ने ये कहते हुए एक नरम सी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली तो मैंने दिल ही दिल में सफ़िया का शुक्रिया अदा किया, जिसने अम्मा को साफ सच्चाई बताकर मेरा काम आसान कर दिया था। मैं अम्मा के साथ मदद करवाने लगी और फौंकनी की मदद से फौंके मारकर लकड़ियों वाला चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस वक्त ना जाने क्या बात थी, लकड़ियाँ जलकर ही नहीं दे रही थी। मैं फौंके मार मार कर थक चुकी थी और आंखों से पानी बहने लगा था। कच्चा धुआं मेरे हलक में उतर रहा था, लेकिन ना जाने क्या बात थी, लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ रही थी। अम्मा खुद हैरान थी, क्योंकि अम्मा भी कितनी देर से कोशिश कर रही थी, लेकिन लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ रही थी। अम्मा कहने लगी, इन लकड़ियों को आज क्या हो गया है? मैं कब से जलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आग ही नहीं पकड़ रही। तेरे बहन भाई खाना मांग रहे हैं, अगर ये आग नहीं पकड़ेंगी तो खाना कैसे बनेगा? अम्मा की ही अपनी परेशानियाँ थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आग नहीं जल सकी। मैं उठकर अपने कमरे में आई, सोचा कुछ कागज़ लेकर जाती हूँ और लकड़ियों के ऊपर रखकर फिर आग जलाती हूँ। लेकिन जब मैं वापस आई तो देखा आग भड़ भड़ जल रही थी। मैंने हैरानी से अम्मा से पूछा तो वो कहने लगी, तुम्हारे जाते ही आग जल चुकी थी और अब देखो खाना बन रहा है। मैं बहुत हैरान हुई और इसी तरह सहन में बिछी हुई चारपाई पर आकर बैठ गई। अम्मा असर के बाद ही सहन में पानी का छिड़काव कर देती, जिसके बाद से मिट्टी की सौंधी खुशबू और हल्की हल्की ठंडक बड़ा अच्छा एहसास दिलाती। उस वक्त भी मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन सर का दर्द और कंधों का भारीपन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं हैरानी से यही सोच रही थी कि आखिर उस पानी में ऐसा क्या था जिसने मेरे सारे वजूद को हिला कर रख दिया और मुझसे वो खड़ा उठाना भी दोपहर हो गया। वो सारी रात मेरे लिए बहुत भारी गुजरे थे। ना तो मुझसे उठा जा रहा था और ना ही बैठा जा रहा था। कंधों और सर के दर्द ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अम्मा खुद हैरान परेशान थी, आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया। और वो मुझे कहने लगी, अच्छी भली तो तू पानी लेने गई थी, आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुझसे अपने कंधे ही नहीं हिलाए जा रहे और सर नहीं उठाया जा रहा। अम्मा को बहुत तशवीश हो रही थी, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती। मुझे तो खुद मालूम नहीं था कि आज मेरे साथ क्या हो गया है। सारी रात बेचैनी से गुजरे। रात ठीक तरह से ना सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फटे जा रहा था और उस वक्त मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। अम्मा बावर्ची खाने में नाश्ता बना रही थी। मेरी आंखें सुर्ख हो गई थी और नींद पूरी ना होने की वजह से आंखों के ऊपर बहुत बोझ पड़ा हुआ था। मैंने उसी तरह बाहर नलके पर आकर मुँह हाथ धोया और जैसे ही मैंने शीशा देखा तो एकदम मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे कंधों के ऊपर कोई वजूद बैठा हुआ था। आईने में उस वजूद को देखकर खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं बहुत हैरानगी से उस वजूद को देख रही थी। मैंने बेइख्तियार अपने हाथों को कंधों की तरफ लेकर जाना चाहा, लेकिन मुझे वो वजूद ऐसे महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन सामने आईने में वो मुझे दिखाई दे रहा था। उसके अजीब से खदोखाल मुझे खौफ में मुब्तला कर रहे थे। मैं बेइख्तियार चीख उठी। मेरी चीख सुनकर अम्मा बावर्ची खाने से भागी भागी आई और पूछने लगी, क्या हुआ मुकद्दस, तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है?
मैंने बौखलाए हुए अंदाज में अम्मा से कहा, अम्मा ये देखो, मेरे कंधे पर कोई वजूद बैठा हुआ है। मैंने अम्मा से कहा तो वो कहने लगी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तुझे वहम हुआ है। लेकिन मैं अम्मा का हाथ पकड़कर अपने कंधों की तरफ ले जाने लगी। लेकिन अम्मा मुसलसल मुझे यही कहे जा रही थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे वाज़े तौर पर उस वजूद का वज़न अपने कंधों पर महसूस हो रहा था। मैंने आईने में देखा तो अब की बार मुझे वो दिखाई नहीं दिया। मैं हैरत से साकत रह गई। यकीन नहीं आ रहा था कि चंद लम्हों में ही वो यहाँ से गायब हो जाएगा। मैं बेहद परेशान थी। अम्मा तो वापस बावर्ची खाने में चली गई थी, लेकिन मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। न जाने क्या बात थी, ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ कल कुएं से ही शुरू हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस बार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। पहले तो कभी मैंने ये महसूस नहीं किया था और ना ही मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था। हालांकि मैं पहले भी पानी लेकर आती रही हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ। अब की बार ऐसा क्या हुआ है? मैं घबरा कर अपने कमरे में चली गई। अम्मा ने मुझे बावर्ची खाने से ही आवाज़ दी और नाश्ता करने का कहा, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और यही कहा कि मेरा भी दिल नहीं जा रहा। ना जाने क्या बात थी, मेरा दिल मतली कर रहा था और इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अभी कै आ जाएगी, लेकिन कै नहीं आ रही थी। वो सारा दिन मैंने अपने कमरे में गुजार दिया। मुझे उस वक्त शदीद बुखार हो गया था और उस बुखार की हालत में मैं अपने मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। अम्मा मेरी हालत से बहुत परेशान हो गई क्योंकि मुझ पर ग़ुनूदगी तारी थी और उस ग़ुनूदगी में मैं बड़बड़ा रही थी। अम्मा परेशान थी और उसी परेशानी में वो डिस्पेंसरी से डॉक्टर को बुला कर ले आई। डॉक्टर ने बुखार वगैरह चेक करके दवा तो दे दी, लेकिन मुझे उस दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब की बार तो अम्मा शदीद परेशान हो गई क्योंकि ना तो मेरे बुखार का ज़ोर टूट रहा था और ना ही मैं होश पकड़ रही थी। रात के वक्त जब अब्बा घर आए तो अम्मा ने परेशानी से उन्हें मेरी हालत के बारे में बताया तो अब्बा कहने लगे, ऐसा कर, इसे शहर में किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लेकिन अम्मा कहने लगी कि वो शहर में कैसे जाएगी, इससे तो बस पर नहीं चढ़ा जाएगा, इतनी कमज़ोरी हो गई है कि खड़ी भी नहीं हो पा रही। अम्मा ने अब्बा से परेशानी से कहा तो अब्बा कहने लगे, अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर चौधरी का शहर की तरफ चक्कर लगता है तो मैं तुझे और इसे भी साथ लेकर जाता हूँ ताकि तुम दोनों अस्पताल दिखाकर घर वापस आ जाना। अब्बा ने ये कहकर खाना खाया और सोने के लिए चले गए। लेकिन अम्मा को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मेरी हालत की वजह से घबराहट हो रही थी और बार बार उसी परेशानी में मेरे कमरे में आ रही थी। इस दौरान जब अम्मा बावर्ची खाने में अपना काम समेटने गई और मैं नीम ग़ुनूदगी की कैफियत में लेटी हुई थी कि अचानक मुझे तेज़ खुशबू महसूस हुई। मैंने अपनी मुंधी मुंधी आंखें खोल कर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे करीब कोई आकर बैठा है। वो कोई जवान आदमी था और काफ़ी ऊंचा, लंबा और जवान था। उसने हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई थी और मेरे करीब आकर बैठा हुआ था और मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। मैंने आहिस्ता आवाज़ में पूछा, कौन हो? तो अपनी भारी आवाज़ में कहने लगा, मैं ज़ीशान हूँ। मैंने पूछा, कौन ज़ीशान? तो वो कहने लगा, मैं एक जिनज़ादा हूँ। मुझे कल से तुमने कैद करवाया था और अब मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। उसकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन बुखार की शिद्दत से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं दोबारा बेहोश हो गई थी। और फिर दोबारा जब मेरी आंखें खुली तो अम्मा मेरे पास ही बैठी हुई थी और मुझे कुछ खाने के लिए इसरार कर रही थी। मैंने उसी तरह ग़ुनूदगी के आलम में अम्मा से पूछा, अम्मा वो ज़ीशान चला गया? अम्मा ने हैरानगी से मुझे देखा और कहने लगी, कौन ज़ीशान? अम्मा वही ज़ीशान जो जिनज़ादा है। मैंने अम्मा से कहा तो अम्मा सन्नाटे में रह गई और उसके बाद मुझे कुछ खबर नहीं हुई क्योंकि मैं दोबारा बुखार की शिद्दत की वजह से फिर से ग़ुनूदगी में चली गई थी। अगले दिन सुबह मेरी तबीयत कुछ फिर बेहतर थी और मैंने अपने आप को घसीटते हुए बाहर सहन में लेकर आ गई। लेकिन उस वक्त भी मेरे जिस्म और सर में शदीद दर्द था। मैं बाहर चारपाई पर आकर बैठ गई। अम्मा मेरे पास आ गई और तशवीश से मुझसे कहने लगी, मुक़द्दस, आखिर तुझे क्या हो गया है? मैं देख रही हूँ 2 दिन से तेरी हालत बहुत ख़राब है और कल तो किसी ज़ीशान का कह रही थी। ये ज़ीशान कौन है?
मैंने एकदम चौंक कर अम्मा को देखा और फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने जिसे देखा था वो हकीकत था, वो मेरा ख्वाब नहीं था। अगर मैं अम्मा से ज़ीशान की बात कर रही थी तो इसका मतलब है ज़ीशान वहाँ पर आया था। और फिर मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया कि ज़ीशान कौन है और किस तरह वो कल मेरे पास आया था। अम्मा ये सब सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब ये डॉक्टर का मसला नहीं है, बल्कि किसी आमिल से ही इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं आज ही गाँव के आमिल बाबा से पता करती हूँ और उनसे तुझे दम करवाती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा और फ़ौरन मेरे लिए कुछ खाने को लेने चली गई। लेकिन मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मुझे अभी भी अपने जिस्म पर एक दबाव महसूस हो रहा था, एक ऐसा बोझ जो मुस्तकिल मेरे कंधों पर महसूस हो रहा था। अम्मा उसी दिन अपने कामों से फारिग होकर आमिल बाबा के पास चली गई और जाकर उन्हें मेरी हालत के बारे में बताया। आमिल बाबा ने पानी पड़कर दम करके दिया और कहा कि बच्ची को यही पानी पिलाना है और साथ ही साथ एक तावीज़ भी दे दिया और कहा कि ये तावीज़ उसके गले में डाल देना, इंशाअल्लाह उससे फ़र्क पड़ जाएगा। अम्मा वो पानी की बोतल और तावीज़ लेकर घर आ गई। लेकिन मैंने जैसे ही पानी का घूंट भरा तो ना जाने मेरे अंदर कैसी आग भड़क उठी। मैं तकलीफ़ की शिद्दत से तड़पने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ना जाने क्या पी लिया है। मेरे अंदर एक आग लग गई थी। मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही थी और बार बार मेरा दिल घबरा रहा था। अम्मा ने जो मेरा जर्द होता रंग देखा तो बहुत परेशान हुई। उन्होंने वो तावीज़ मेरे गले में डाल दिया, लेकिन उस तावीज़ के डालने के बाद मेरी हालत और ख़राब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मेरा सांस घुट रहा था, आवाज़ बंद हो रही थी, मेरी आंखें बाहर को उबल रही थी। अम्मा बेतरह परेशान हो गई। उन्होंने उसी वक्त वो तावीज़ उतार कर रख दिया। वो मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हुई। अम्मा मेरे ऊपर आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़कर फूंकने लगी, लेकिन उस वक्त मुझे कोई भी चीज़ सुकून नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा वजूद एक अनदेखी आग में जल रहा हो। और फिर जैसे ही मैं नीम बेहोश सी होकर अपने बिस्तर पर गिर गई, उसके बाद मुझे कुछ खबर नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। अम्मा मेरी हालत की वजह से बहुत परेशान थे और दूसरे दिन वो दोबारा आमिल बाबा के पास गए और उन्हें जाकर मेरी हालत के बारे में बताया। आमिल बाबा कहने लगे कि यकीनन इस बच्ची के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हावी हो गई है जो शैतानी है, इसलिए मुझे अमल करके उसे इस दुनिया में वापस भेजना होगा। उसके लिए मुझे उस बच्ची के पास जाना होगा, या तो तुम उस बच्ची को यहाँ पर लेकर आओ। आमिल बाबा ने कहा तो अम्मा बहुत परेशान हुई और कहने लगी, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरी बच्ची तो कहीं आती जाती भी नहीं है और ना ही उसने कभी कोई काम किया है। वो खूबसूरत है, हाफिज़ कुरान है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अम्मा ये कहते हुए रो पड़ी, जबकि आमिल बाबा कहने लगे कि हो सकता है उससे गलती से कुछ हो गया हो और अब वो उसकी जान नहीं छोड़ रहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उस बच्ची को आज़ादी दिला दूंगा। मुझे एक बार उस बच्ची के पास ले चलो या फिर बच्ची को यहाँ पर लेकर आओ। आमिल बाबा ने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा तो अम्मा कहने लगी, मेरी बच्ची तो अभी बहुत बीमार है, उससे तो उठा भी नहीं जा रहा, वो चल फिर नहीं सकती। आप वक्त निकाल कर मेरे घर पर आ जाएं और उस बच्ची को देख लें। अम्मा ने उम्मीद भरे लहजे में आमिल बाबा की तरफ देखते हुए कहा तो वो कहने लगी, ठीक है, मैं कल असर के बाद घर पर आऊँगा, तब तक बच्ची को पानी पिलाती रहना। अगर उसे कोई भी मसला हो तो फिर भी वो पानी पीना ना छोड़े। उस पानी से ये होगा कि वो चीज़ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। आमिल बाबा ने अम्मा को तायीद करते हुए कहा तो अम्मा सर हिलाती हुई घर वापस आ गई, लेकिन उनके अंदर से परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मा मेरी तरफ से बेहद परेशान थे। इसी वजह से अम्मा को कोई काम भी नहीं हो रहा था। वो मेरी चारपाई से उठ नहीं रहे थे, वो मुसलसल मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। अम्मा की परेशानी को मैं इस हालत में भी महसूस कर सकती थी। अम्मा को मुझसे बहुत लगाव था और जब से मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, अम्मा मुझसे खुसूसी मोहब्बत रखने लगी थी। अभी भी अम्मा मेरे सिरहाने बैठी हुई थी तो मुझे कहने लगी, मुकद्दस बेटा, तू कोशिश कर, अगर तुझे इस हालत में कुरान पाक याद है तो उसे पढ़, शायद कोई बेहतरी हो जाए, तेरी हालत ठीक हो जाए। अम्मा ने बड़ी आस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा
تو میں نے غنودگی کے عالم میں انہیں کہا، اماں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سینے پر کوئی بوجھ پڑ گیا ہو۔ میں نے بے بسی کے عالم میں اماں سے کہا تو اماں آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی، نہ جانے میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، نہ جانے کون بدبخت میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تاہم میں نے اماں سے کہا، اماں میرا قرآن پاک سننے کو بہت دل چاہ رہا ہے، تم مجھے قرآن پاک پڑھ کر سنا دو۔ میں نے اماں سے جب یہ فرمائش کی تو اماں اسی وقت اٹھ کر وضو کر کے آئی اور آ کر قرآن پاک کھول کر مجھے سنانے لگی۔ قرآن پاک سنتے ہوئے مجھے بڑا سکون محسوس ہوا اور پھر اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ کھلک گئی۔ آج 2 دن کے بعد میں بڑے سکون سے سوئی تھی، لیکن ایک خوفناک خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس خواب میں نے دیکھا کہ میں اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ اچانک میرے قریب مجھے کسی چیز کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں چونک کر دیکھتی ہوں تو میرے پاس ذیشان کھڑا ہوتا ہے۔ ذیشان کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں اور اپنے بستر سے اٹھ کر باہر بھاگنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ سے بھاگا نہیں جاتا۔ میں جیسے بے جان سی ہو کر بستر پر پڑی رہ جاتی ہوں۔ ذیشان ایک دم سے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر رکھتا اور پھر جانے میرے چہرے کو کیا ہو جاتا کہ اس کے اوپر سے خون رسنے لگتا ہے۔ میں نمی سی محسوس کر کے اپنے ہاتھوں کو جب اپنے چہرے پر لگاتی ہوں تو میرے دونوں ہاتھ خون سے بھیگ جاتے ہیں۔ میں چیخنے چلانے لگتی ہوں، لیکن میری چیخ سن کر وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا اور ذیشان وہاں پر کھڑا بے ہنگم کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے۔ مجھے اب چہرے پر شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس تکلیف کے مارے میں مسلسل چلائے جاتی ہوں، لیکن ذیشان کو مجھ پر ایک بار بھی ترس نہیں آتا اور پھر اسی تکلیف میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ یہ خواب میرے اندر اتنا خوف پیدا کر دیتا ہے کہ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ اماں میرے قریب ہی بیٹھی ہوتی ہیں۔ مجھے اس طرح اٹھتے دیکھ کر وہ چونک جاتے ہیں اور مجھ سے تشویش سے پوچھتی ہیں، کیا ہوا مقدس، تو ٹھیک تو ہے؟ اماں وہ ذیشان میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، وہ مجھے مار دے گا، یہ دیکھو اس نے میرے چہرے پر کیا کر دیا ہے، میرے سارے چہرے پر زخم بنا دیے اور خون رس رہا ہے۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر لگا دیا۔ اماں میری طرف تشویش سے دیکھ رہی تھی، انہیں جیسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہوں، لیکن میں تو اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ آخر میں یہ سب کیا کر رہی ہوں۔ میں اماں کو اپنے خواب کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن مجھے وہ خواب ایک حقیقت لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ذیشان نے سچ مچ میرے چہرے پر زخم بنا دیے اور میں ان زخموں کو محسوس کر کے اور زیادہ پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ اماں کو آج بے چینی سے عامل بابا کا انتظار تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کے آنے کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میری جو حالت ہو رہی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں اس وقت بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ سارا جسم ایسے جھٹکا کھا رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ عامل بابا عصر کے بعد آئے۔ اماں انہیں سیدھا میرے کمرے میں ہی لے آئی۔ عامل بابا میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھائی پڑھ کر میرے اوپر دم کیا، جس کے ساتھ ہی میرا وجود جھٹکے کھانے لگا اور ایک دم میرے ہاتھ پیر مڑ گئے۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ روتے ہوئے ہی انہوں نے عامل بابا سے دریافت کیا کہ آخر میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسے جھٹکے کیوں کھا رہی ہے؟ تو عامل بابا کہنے لگے کہ یہ علاج کا حصہ ہے اور آپ خاموشی سے وہاں پر بیٹھ جائیں، ورنہ باہر چلی جائیں، آپ ماں ہیں، آپ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا۔ اماں کا دل مجھے اس طرح چھوڑ جانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے خاموشی اختیار کر لی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ عامل بابا مسلسل پڑھائی کر کے مجھ پر کچھ پھونک رہے تھے، لیکن میرا جسم اسی طرح جھٹکے کھا رہا تھا اور میں ویسے ہی گھبرائے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں ایک دم بھاری آواز میں عامل بابا سے کہنے لگی، کیوں تم میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں تم مجھے نہیں چھوڑ رہے؟ میری بھاری آواز سن کر اماں گھبرا گئی، جبکہ عامل بابا کہنے لگے، تم کیوں اس بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، آخر کیوں نہیں اس کا پیچھا چھوڑ دیتے؟ جبکہ میں نے اسی بھاری آواز میں کہا، میں نہیں اس کا پیچھا چھوڑوں گا، اس نے مجھے اس کنویں سے آزاد کروایا ہے، اگر یہ مجھے آزاد نہ کرواتی تو میں وہیں پر ساری زندگی قید رہتا، لیکن جب اس نے مجھے آزاد کروا دیا اور میں نے اسے دیکھا تو میں اس پر عاشق ہو گیا۔ اب میں کبھی بھی اس کی قید سے آزادی نہیں چاہوں گا، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا
मैं इसे कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनकर आमिल बाबा कहने लगे कि इसने तुम्हें नासमझी में आज़ाद करवा दिया था। बजाय इसके एहसानमंद होने के तुम इसे तंग कर रहे हो। इस बच्ची की हालत देखो, दिनों में कैसे मुरझा कर रह गई है, परेशान होकर रह गई है। इसकी सेहत बर्बाद हो गई है। आखिर क्यों नहीं तुम इसका पीछा छोड़ देते? जाओ, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आमिल बाबा ने गुस्से और रौब से कहा तो मैंने दोबारा उन्हें वही जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं इस तरह इसे छोड़ कर नहीं जाऊँगा। मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ और इसके साथ ही रहूँगा। मेरी भारी आवाज़ सुनकर आमिल बाबा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वह मुसलसल पढ़ाई करके मुझे वहाँ से जाने का कहते रहे। फिर आमिल बाबा ने पानी के ऊपर पड़कर कुछ फूंका और मेरा सारा वजूद जैसे एकदम से जलने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उसमें से धुआं निकल आया हो। मैं तकलीफ़ की शिद्दत से चिल्ला रही थी, जबकि अम्मा तो ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और कमरे से बाहर निकल गई। उसी वक्त तकलीफ़ की शिद्दत से मैं बेहोश होकर गिर गई। फिर मुझे कुछ खबर नहीं रही, जाने मुझे कितने वक्त बाद होश आया। लेकिन जब मुझे होश आया तो अम्मा ने ही मुझे बताया कि आमिल ने पढ़ाई करके उस जिनजादे को कैद कर दिया है और वो कोई शैतानी जिनजादा था जो पहले भी किसी शरारत की वजह से उस कुएं में कैद कर दिया गया था। लेकिन तुम्हारी बेखबरी की वजह से जब वो कुएं से बाहर आ गया तो फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ गया और तुम्हें तंग करने लगा। आमिल बाबा ने उसे जाने का बहुत कहा, लेकिन जब वो नहीं गया और अपनी बात पर बजिद रहा तो उन्होंने दोबारा उसे कुएं में कैद कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि कुंवारी लड़कियां उस कुएं से पानी नहीं भरेंगी, वरना जो भी कुंवारी लड़की वहाँ से पानी भरेगी वो जिनज़ादा दोबारा उसके ऊपर आशिक हो जाएगा। अम्मा ने जब मुझे ये बताया तो मैं एक झुरझुरी लेकर रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। तभी उस दिन ढोल का वज़न इतना भारी था कि मुझसे खिंचा ही नहीं जा रहा था। मैंने बेखबरी में उस जिनज़ादे को वहाँ से आज़ाद करवा दिया था और उसके बाद जब वो मेरे पीछे पड़ गया तो उसने मेरी जान आधी कर दी। वो जिनज़ादा तो दोबारा से कैद हो गया था, लेकिन मेरे दिल से उसका खौफ नहीं जा रहा था। ना जाने क्या बात थी, ना तो अब मैं तन्हा कहीं बैठ सकती थी और ना ही अब घर से बाहर निकल सकती थी। मैं अपने साए से भी डरने लगती थी। अम्मा मेरी हालत देख रहे थे, लेकिन उन्हें आमिल बाबा ने बता दिया था कि अभी कुछ दिन तक मेरी हालत उसी तरह रहेगी। मैं उसी तरह खौफ का शिकार होती रहूँगी और वहम करती रहूँगी। ये मेरे बस में नहीं था। मुझे बार बार ज़ीशान की मौजूदगी का एहसास होता और मैं घबरा जाती। अब मेरी सेहत भी काफ़ी ख़राब थी। अम्मा ने अब मेरे ऊपर खुसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी। उनका कहना था कि मेरी बेटी का सारा हुस्न मुरझा कर रह गया है। उस जिनज़ादे ने तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अम्मा को मैं क्या बताती कि आधी तो मैं पहले ही मर चुकी थी। आमिल बाबा के कहने पर अम्मा ने सबको मना कर दिया था कि कोई भी उस कुएं पर कुंवारी लड़की को न भेजे। अब वहाँ पर कोई भी कुंवारी लड़की नहीं जाते थे, क्योंकि सबको मेरी हालत देखकर खौफ लाहक हो गया था और सब तौबा तौबा करने लगे। सारा गांव एक अनदेखे खौफ का शिकार हो गया था। वहाँ पर अब सिर्फ शादीशुदा औरतें ही जाती और पानी भर कर लाया करती, क्योंकि मजबूरी ये थी कि गांव में कोई और कुआं भी नहीं था। अब दोबारा इसी तरह का कोई भी वाक़या देखने को नहीं मिला था। उस वाक़े को गुजरे अब साल हो चुका था और अम्मा आजकल मेरा रिश्ता देख रही थी, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसे लगता था जैसे ज़ीशान अभी भी मेरे पीछे हो। लेकिन अम्मा का कहना था कि अब तुम्हें सिर्फ वहम है और कोई मसला नहीं है। ज़ीशान अब यहाँ कहीं भी नहीं है, वो इस कुएं में कैद है। तुम कभी भी वहाँ पर नहीं जाओगी। लेकिन मैं क्या करती? मुझे अक्सर ख्वाब में वो कुआं दिखाई देता, अक्सर ज़ीशान की खुशबू महसूस होती थी, तो मैं घबरा कर उठ जाती। लेकिन अम्मा का यही कहना था कि ये सब तुम्हारा वहम है। अब ज़ीशान का और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब तुम कभी भी उस कुएं पर नहीं जाओगी। अगर तुम वहाँ पर गई तो ज़ीशान दोबारा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अम्मा अपनी सी पूरी कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, जबकि मैं खुद को अभी इस काबिल नहीं समझती थी। और फिर अम्मा को एक मुनासिब रिश्ता मिल गया। अम्मा ने मेरी शादी कर दी, लेकिन शादी की रात ही मुझे दोबारा ज़ीशान की खुशबू महसूस हुई। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। ना जाने मुझे क्या हुआ था। चिल्लाते चिल्लाते मैं बेहोश हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे
اگلے ہی دن میرے گھر پر واپس بھیج دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر تو جنات عاشق ہیں، یہ لڑکی اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اس کا علاج کروائیں۔ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کے اوپر جنات عاشق ہیں، ورنہ ہم کبھی اپنے لڑکے کے لیے ایسی لڑکی کا رشتہ قبول ہی نہ کرتے۔ اماں بے حد پریشان تھیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن گھر واپس آنے کے بعد میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اماں کو اب نئی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب میری زندگی برباد ہو چکی ہے، سسرال والوں نے مجھے قبول نہیں کیا، اور اگر انہوں نے طلاق بھیج دی تو میں دوبارہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکوں گی۔ اب رہ رہ کر اس بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ میری بات مان لیتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ حالانکہ میں اماں کو کئی بار شادی سے منع کر چکی تھی، میں شادی کے قابل نہیں تھی، میں ابھی ایک نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی تھی، لیکن اماں نے اپنی مرضی کی اور اب اس کا نتیجہ بھگت رہے تھے۔ عامل بابا بھی مسلسل میرے علاج کے اوپر توجہ دے رہے تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرے ذہن پر یہ ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ ذیشان ابھی بھی میرے ساتھ ہے اور وہ کبھی بھی مجھے چھوڑے گا نہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ذیشان کبھی پیچھے ہٹ سکے گا؟ کیا کبھی میرے دل سے یہ ڈر نکل سکے گا؟ کیا میں دوبارہ ایک عام زندگی جی سکوں گی؟ میرے سسرال والے مجھے دوبارہ قبول کر لیں گے؟ آپ کے خیال میں کیا کبھی یہ مسئلہ حل ہوگا؟